کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ حج و عمرے میں دم اگر واجب ہو جائے، دم اگر لازم ہو جائے تو اس کا گوشت خاص فقراء کا حق ہے۔ دم دینے والے پر اس گوشت کو شرعی فقیر پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ قربانی کرنے والا خود اگرچہ فقیر ہو، اس گوشت کو نہیں کھا سکتا۔ یوں ہی جو شخص شرعی فقیر نہ ہو، اسے بھی اس گوشت کو کھانا جائز نہیں۔ البتہ اگر دم کی قربانی کرنے والا وہ گوشت کسی شرعی فقیر کو دے دے، یا قصاب کے شرعی فقیر ہونے کی صورت میں قصاب ہی کو، یعنی جس نے ذبح کیا، اس کو اجرت کے علاوہ، جو اس کی اجرت بنتی تھی، جو اس کی پیمنٹ بنتی تھی، اس کے علاوہ میں وہ گوشت دے دے، اور پھر یہ لوگ کسی ایسے شخص کو جو شرعی فقیر نہ ہو، یعنی وہ قصاب یا وہ شرعی فقیر، وہ کسی ایسے شخص کو دے دے، یعنی ہبہ کر دے کہ جو شرعی فقیر نہ ہو، یا بیچ دے، تو اب غیر مستحق شخص کے لیے اس گوشت کا لینا اور اسے کھانا جائز ہوگا۔ راہ مدینہ کے سبھی کاٹے گئے پھول سے، راہ مدینہ کے سبھی کاٹے ہیں پھول سے، دیوانہ باشعور ہے جانا ضرور ہے۔ یہاں آ کے الحمدللہ اتنی خوشی ہوئی ہے، اتنا سکون مل رہا ہے۔ اور آج کے مدنی مذاکرہ چونکہ نسبت ہمارے دادا مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تھا، ان کی سیرت پہ جو ہم نے سنت نے گفتگو فرمائی۔ آج مدنی مذاکرے کے اندر الحمدللہ پیر صاحب کا، اپنے پیر صاحب کے ساتھ جو محبت کا انداز اور عشق کا جو نرالا انداز، الحمدللہ یہی انداز بزرگوں کا، اسلاف کا، پیر و مرشد کے ساتھ یہی طریقہ رہا ہے۔ اللہ پاک حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ شہاب الدین سور وردی علیہ الرحمہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، الحمدللہ آج مدنی مذاکرے کے اندر یہی چیز نظر آئی۔ اور امیر السنت کی ذہانت پہ لاکھوں سلام کے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہر کوئی متاثر ہو کہ الحمدللہ۔ بہت سارے ہماری زندگی کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ مزدور کی اجرت اس کے پسینے خشک ہونے سے پہلے ہی دے دی جائے، ٹال مٹول کر کے ان کی باتوں کو پھیرا نہ جائے، بلکہ ان کو جلد ہی جلد کی اجرت دے دی چاہیے۔ جیسے کہ ابھی اگر قربانی کا چل رہا ہے تو پیر صاحب نے قربانی کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ ہم قربانی کے لیے جانور خریدنے جائیں تو اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے جائیں، اور جیسا کہ انہوں نے قرض خواہ کے لیے بتایا کہ وہ اس کو دوسرے قرض دار کو مول ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑی پیاری بات تھی۔ ترک اسباب کا نام جو یہ توکل نہیں ہے۔ جانوروں کے حوالے سے بات ہوئی کہ جانوروں کے ساتھ شفقت کا انداز، اگر ہم جانور لینے جاتے ہیں تو اس کے کھلائی پلائی کے معاملے میں بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ جانور کیا کھاتا ہے۔ کوئز کے جو آخر میں سوال ہوئے تھے وہ بھی بہت اچھے لگے، جو یہ نماز کے فرائض پوچھے گئے ساتھ تھے، اور اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس کے علاوہ اور بھی کوشچن تھے جو بہت اچھے لگے۔ ہم دوست بیٹھے رہے تھے، آپس میں سوال کر رہے تھے، وہ جواب بھی دے رہے تھے، میں بھی جواب رہے تھا، وہ بھی دے رہے تھے۔ اپنا جو ہے نا ٹائم ایک تو جو ہے نا ضائع کرتے ہیں ادھر ادھر، اب منی جو ہے نا آ جائے گا تو ہمارا دل اس میں لگ جائے گا، اور کچھ نہ کچھ ہمیں اس سے جو ہے نا حاصل ہوگا، سیکھیں گے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے حوالے سے جو ہمیں دیکھنے کو ملا کہ بزرگوں کے حوالے سے بھی دعوت اسلامی کام کرنے جا رہی ہے، جس سے الحمدللہ کئی بزرگوں کو بے شمار علم حاصل ہوگا، ان کی اصلاح ہوگی، مزید جو بڑھاپے میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس چینل کے لانچ ہونے سے اس سے فوائد حاصل ہوگا۔ بزرگوں کا مدنی چینل چلے گا اور اس کے ذریعے سے بزرگوں میں نئی تبدیلیاں آئیں گی۔ اور پیارے بھائی سب کچھ جو ہے پیر صاحب کا فیضان ہے۔ میرے والد صاحب جو ہے پہلے کریم شیپ تھے، پینٹ شرٹ پہنتے تھے، میرے والد صاحب کو پیر صاحب کا کہہ سکتے ہیں۔ پیر صاحب کا فیضان ایسا جاری ہوا کہ ہمارے آدھے سے زیادہ ماشاءاللہ خاندان میں پیر صاحب کے مطلب سارے اسی کی نسبت سے سب نے داڑھی رکھی ہوئی چاچو لوگوں نے۔ میں بھی گناہوں کی زندگی میں تھا، مدنی مذاکرہ دیکھ کے الحمدللہ آج کراچی میں امیر السنت کا فیضان حاصل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میرے گھر میں ٹوٹلی بہنیں بھائی سارا گھر
का माहौल मदनी चैनल देखता है, और उसके अलावा जो भी है ना मेरे बहनें जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह सब दावत इस्लामी के आज़ा साहब की मुरीद बन गई हैं अल्लाह ताला के। और मैंने मेरे अहले सुन्नत से कुर्बानी के जानवर के लिए बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि कुर्बानी के जानवर को कैसे रखना चाहिए, कि जानवर की रस्सी को टाइट नहीं करना चाहिए और इसको अच्छा चारा डालना चाहिए। कुर्बानी के बारे में, जानवरों के नाम रखने के बारे में बताया, और जो कुर्बान करते हैं जानवर कसाई उनके बारे में बताया। अमीर सुन्नत ने फरमाया कि जानवर कुर्बानी का हो या कोई सा भी हो, किसी भी किस्म की तकलीफ हमारी तरफ से नहीं पहुंचनी चाहिए। अमीर अहले सुन्नत से आज हमने सीखा रिज़्क के बारे में दुआ कैसे करनी चाहिए, कि रिज़्क में बरकत मांगो, ना कि रिज़्क में कसरत मांगो। रिज़्क में अक्सर हम लोग कसरत मांग रहे होते हैं, हालांकि बरकत मांगनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। 1445 हिजरी के जुल्हज शरीफ की 5वीं शब है आज। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 5। नमाज के बाद हम्द व सना व दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद नवैतु सुन्नत अल-इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की शहादत पाएं, इतिकाफ की नीयत जरूर फरमाएं। ये मुफ्त का सवाब है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक मस्जिद में रहेंगे आपको सवाब मिलेगा, जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल इतिकाफ खत्म हो जाएगा। फिर दाखिल मस्जिद हो तो नए सिरे से नीयत कर लीजिए। दिल में नीयत हाजिर होते हुए दिल में नीयत की ये काफ़ी है, और बेहतर यह है कि मजीद ज़बान से भी कह लें। दिल में तो शर्त ही है, दिल में नीयत होते हुए ज़बान से कह लेना। उर्दू में भले कह लें कि मैंने सुन्नत एतिकाफ की नीयत की। ये भी जहन में रखिए कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं कि एतिकाफ की नीयत की हो। एतिकाफ की नीयत ना की हो तो ये मस्जिद में इफ्तार भी नहीं कर सकेंगे। अब इफ्तार का वक्त आ गया तो ठीक है, एतिकाफ की नीयत कर लें, कौन सी देर लगेगी। तो एतिकाफ की नीयत करके आप भले इफ्तार कर दीजिए, खा पी लीजिए जो भी, इन्हें कि वो जायज़ हो गया खाना पीना। ताहम मुनासिब तरीक़ा ये है कि एतिकाफ की नीयत सवाब के लिए करें ताकि सवाब भी मिले, और कुछ ज़िक्र व दुरूद कर लें, चाहें तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें। शक इफ्तार करें, खाएं पिएं सोएं ज़रूरतन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाब के लिए अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए, जो आपकी कैफियत, जो कल्बी कैफियत हो कि ये पूरा करेंगे आप। तो इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों में इशारे करने, खुद को शादा होकर फैल कर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर, सिर्फ अल्लाह पाक की रजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक इन्हीं इलाना, सलात व सलाम, दुआ वगैरह के बाद ही अपनी जगह छोड़ूंगा। मदनी मुज़ाकरा खत्म होने के बाद आगे बढ़कर साए भाइयों से सलाम व मुसाफहा करूंगा, इन्हें हाथ वगैरह मिलाऊंगा, और आइंदा भी आते रहने की दावत देकर
सवाब का हकदार बनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा उजैर भाई ये बताएं इस बार क्या इरादा है, कुर्बानी कर रहे हैं क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार भी हम कुर्बानी कर रहे हैं और इस साल हमने 2 बकरे लिए हैं। आपने कौन सा जानवर लिया है? आपने सिर्फ बकरे लिए हैं इस साल? हमने तो बहुत ही महंगा और तगड़ा जानवर लिया है और शायद ही कोई दूसरा जानवर हमारे जानवर के मुकाबले का हो। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन। लेकिन जुबैर भाई, कुर्बानी मुकाबले का इवेंट नहीं है कि जानवर के तगड़े होने या महंगे होने का आपस में कंपटीशन करें। अरे क्या हो गया उजैर भाई, इतना महंगा जानवर खरीदा है, अब लोगों को बताने का हक तो बनता है ना। आखिर हम पूरी रात मंडी में घूमे हैं, फिर जाकर एक जानवर समझ आया। आप ठीक कह रहे हैं, आपने बड़ी मेहनत से तलाश करके जानवर खरीदा है और कुर्बानी के लिए अच्छे से अच्छा जानवर लेना भी चाहिए, लेकिन इस तरह लोगों को बताना ये अच्छी बात नहीं है। ये तो दिखावे वाला अंदाज है और कुर्बानी अल्लाह पाक के लिए की जाती है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। और इस तरह जानवर के महंगे होने और दूसरी चीजें बताने से जो बेचारे कुर्बानी नहीं कर पाते होंगे वो भी अफसोस करते होंगे और सोचते होंगे कि ए काश हमारे पास भी इतने पैसे होते तो हम भी कुर्बानी करते। उजैर भाई ये तो आप सही कह रहे हैं, कुर्बानी का हकीकी मकसद तो अल्लाह पाक को राजी करना है, ना कि लोगों को दिखावा करना। लेकिन उजैर भाई मैंने आपको तो सब सच सच बताया है, लोग तो न जाने क्या क्या बातें बना कर बता रहे होते हैं, यहाँ तक कि सस्ता जानवर खरीदते हैं और लोगों को बताते हैं हमने तो बहुत ही महंगा जानवर लिया है। ऐसा जानवर यहाँ कहीं भी नहीं। उजैर भाई जो इस तरह की बातें करते हैं उसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? इसका जवाब तो हमें हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत बता सकते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि जो लोग दिखावे के लिए कुर्बानी के जानवरों के रेट बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, ऐसे लोगों के बारे में इस्लाम क्या कहता है? अल्लाह अल्लाह, सही बताने में भी अगर दुनिया को दिखाना मकसूद हो, रिया मकसूद हो। रिया की तारीफ ये होती है कि इबादत में जो कुर्बानी इबादत शायरुल्लाह में से, अल्लाह की निशानियों में से, तो कुर्बानी में मतलब रिया करना, रिया यानी इबादत होती है अल्लाह के लिए की जाती है। तो अब दिखावे से मुराद ये है यानी यहाँ रिया कब होगी, गुनाहों वाली रिया, कि इसलिए किसी को सुनाया दिखाया कि लोग वाह वाह करेंगे, तारीफ करेंगे, मुतासिर होंगे, लोगों के दिल में मकाम बने, इसके लिए अपनी इबादत का इजहार, ये रिया। और या ये हो के अपनी इबादत इसलिए जाहिर कर रहा है कि लोग इसको तोहफे ताइफ दें, पैसे दें वगैरह, तो ये भी एक मतलब रिया है, पैसों के लिए अपनी इबादत को शो करना। तो ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए हो, वरना वैसे रिया के बगैर के मेरी वाह वाह होगी या मेरे मतलब मेरी इज्जत बनेगी, अगर इसके लिए नहीं कर रहा तो वैसे ही लोग बोल रहे होते हैं। नीयत दिखावे की अगर नहीं है तो बताने महाराज नहीं कि इतने का लिया और शानदार जानवर है वगैरह, नहीं, जो सच है उसका तज़किरा किया तो कोई शरअन हरज नहीं। अच्छा, अब ये कि लिया सस्ता और बता रहा है कि महंगा लिया है, या जितने का लिया है वो छुपा कर रकम बढ़ाकर बताता है, तो ये तो झूठ हुआ। अपने आप को सखी कह रहा है, दिलेर कह रहा है, वह अल्लाह की राह में कुर्बानी करने में पैसों को नहीं देखता भाई, उसी का तो जिया हुआ है, उसी की राह में कुर्बान, अपनी जान भी कुर्बान, तो मैं तो इतने का ले आया हूँ। अब ऐसी बातें करता है तो ज़ाहिर है अगर ये झूठ बोल रहा है तो गुनाहगार और अज़ाब नार का हकदार, जहन्नम का हकदार है। तो बिल्कुल ऐसी बात, झूठ तो बोलना नहीं है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले के लोग इबादत करके रिया करते थे, अब तो ऐसा दौर आ गया कि इबादत नहीं करते फिर भी रिया करते हैं, ना की भी इबादत पर। जिन्हें महंगा ना लिया हुआ, अगर किसी ने ज़्यादा खर्च किया है राय खुदा में तो ज़्यादा सवाब मिलेगा उसको, तो वो कम सवाब वाला काम करके उसको ज़्यादा सवाब वाला काम कह रहा है और झूठ बोल रहा है और रिया कर रहा है। तो ये इसको बचना चाहिए, इससे तौबा करनी चाहिए जिसने ऐसा किया है। कुरान करीम में इरशाद होता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा
ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. یہ ہمارا سورۃ الحج آیت نمبر 37. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے، یعنی پہنچتی ہے. یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو. تو قرآن کریم نے صاف ارشاد فرما دیا کہ نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تقوی پہنچتا ہے. جی ہاں، اخلاص مطلب کہ جو خلوص سے کرے گا تو وہی کہ مطلب ہے کہ کامیابی ہوگی، ورنہ یہ کہ دکھاوے کے لیے کامیابی نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ عید سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ خاص کہ جو لوگ عید سے پہلے چاند رات کو ہی قربانی کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ سعودی عرب میں قربانی ہو چکی ہے، تو کیا وہ ہمارے پاکستان میں بھی جائز ہے؟ وقت پر ہی ہو سکے گی. عرب شریف میں مدینہ پاک میں ہمارے 2 گھنٹے کے بعد روزہ کھلتا ہے، تقریباً 2 گھنٹے کا فرق ہے. کیا خیال ہے بھوکے رہو گے؟ کراچی میں تو مغرب ہی نہیں پڑھنی آپ نے، مغرب کو تو بہت دیر ہے. 2 گھنٹے میں جب پاکستان کی مغرب ختم ہو جائے، عشاء کا وقت شروع ہو جائے، اب چونکہ مدینہ میں ٹائم ہوا ہے نا، عرب شریف میں ٹائم ہوا ہے، تو اب کرو افطار، کب مغرب پڑھو. تو آپ کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا ایسی باتیں کرو گے. تو اللہ کے بندو ایسا نہیں ہوتا، جہاں جس کا وقت ہے وہی وہ ہوگا. پاکستان سے 2 گھنٹے کا فرق ہے، باقی دوسرے ملکوں میں تو بہت کہیں رات ہے کہیں دن ہے، تو ایسے فرق ہوتے ہیں. تو جو اوقات جو مطلب ہوتے ہیں نا ان کے، تو قربانی عید رات کو تو نہیں ہو سکتی. وہاں 1 دن پہلے اگر چاند ہو بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، پر روزہ بھی آپ پہلے سے رکھ لینا. وہاں چاند ہو جائے نا، ہمارے یہاں 30 شعبان ہو تو روزہ رکھ لینا، اور وہاں چاند ہو جائے تو رمضان بھلے ہو یہاں پر، اور عید منا لینا. عید کی نماز پڑھائے گا کون آپ کو؟ اچھا اکیلے پڑھو گے تو اکیلے ہوتی ہی نہیں ہے، اور عید نہ ہو تب بھی نہیں ہوتی نماز. تو بہرحال یہ کہ یہ کوئی بہت زیادہ مطلب ناسمجھ آدمی ہی ایسی حرکت کر سکتا ہے، یا پتہ نہیں سے فرضی بات ہے. کوئی ابھی تک تو کوئی دیکھا نہیں ہے کہ عید رات کو قربانی کرتا ہو. اللہ بہتر جانے، کوئی کرتا ہے تو اس کو سے توبہ کرنی ہوگی، ایسا نہ کرے، اور قربانی بھی اس کو نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، قربانی سے 2 دن پہلے بچے کی پیدائش ہوئی. اس صورت میں قربانی کا وہ جانور جو قربانی کے لیے خریدا گیا تھا، اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کے بچے کا کیا حکم ہوگا؟ جو شرعی فقیر ہوتا ہے جس پر قربانی واجب نہیں، اس کے لیے تو یہی واجب ہے، کمپلسری ہے، جو جانور خریدا تو اس کو قربان کر دے، اس کے بچے کو بھی قربان کر دے. غنی البتہ یہ کہ اس کو جانور بدلنے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ اس سے عمدہ جانور لے، کم قیمت کا نہیں. کم قیمت کا لے گا تو جو کمی ہے اس کا صدقہ کرنا ہوگا. جیسے کہ یہ بیچ دیا 10,000 میں، اب لیا 8,000 والا غنی نے جس پر قربانی واجب تھی، تو اب یہ 2,000 جو بچے نا، یہ بھی اس کو صدقہ کرنا ہوگا، یعنی ایسے شخص کو دینا ہوگا جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا ہے. اچھا اب یہ بچہ باہر شریعت میں قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، قربانی کرنے سے پہلے اس کے بچہ پیدا ہوا تو بچے کو بھی ذبح کر ڈالے. اگر بچے کو بیچ ڈالا تو اس کا ثمن
यानी जो भाव उसको मिला, कीमत हासिल हुई, सदका कर दे, यानी ऐसे शख्स को दे दे कि जिसको ज़कात देना जायज़ होता है। और अगर ना ज़बहा किया, ना बेच किया, नहीं बेचा, और अय्याम नहर में कुर्बानी के दिन गुजर गए, तो उसको जिंदा सदका कर दे, जिंदा किसी ऐसे शख्स को दे दे जिसको ज़कात देना जायज़ होता है। और अगर कुछ ना किया और बच्चा उसके यहाँ रहा और कुर्बानी का ज़माना आ गया, ये चाहता है कि इस साल की कुर्बानी में इसको ज़बह करे, ये नहीं कर सकता। और अगर कुर्बानी इसी की कर दी तो दूसरी कुर्बानी फिर करे कि वो कुर्बानी नहीं हुई और वो बच्चा ज़बह किया हुआ सदका कर दे, बल्कि ज़बह से जो कुछ उसकी कीमत में कमी हुई उससे भी सदका करे, यानी राय खुदा में दे दे उसी को जिसको ज़कात देना जायज़ होता है। मोहम्मद साबिर कुरैशी, मेरी सुन्नत से सवाल है कि ऊँट के गोश्त के खाने के फ़वाइद बताएं। सुना है कि ऊँट के गोश्त की हड्डी का भी फ़ायदे हैं, दूध के भी फ़वाइद हैं, गोश्त के भी फ़ायदे हैं, खून के भी फ़वाइद हैं, आप इनकी तस्दीक कर दें। खैर खून तो नहीं खाया जाएगा, ऊँट का गोश्त तो इसके फ़ायदे का इतना ही काफ़ी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने मुबारक हाथ से नहर किए। और ऊँट का गोश्त उस दौर में तो काफ़ी खाया जाता था, ऊँट का गोश्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। अब भी अरब दुनिया में ऊँट का गोश्त खाया जाता है। हमारे भी ऊँट कटते हैं, कराची में भी कटते हैं, तो लेकिन हमारे कम खाया जाता है ऊँट का गोश्त। तो इसके तिब्बी फ़वाइद वगैरह सब लिखे हुए हैं, अब इस वक्त सारे मुझे याद तो नहीं है। इसका दूध भी फायदे वाला ऊँटनी का, खून बहरहाल हराम है, जो ज़बह करते वक्त जो खून निकला या नहर करते वक्त जो खून निकला, ये भी सुना है लोग, बाज़ लोग पीते हैं इसको, माअज़ल्लाह हराम है और जहन्नम ले जाने वाला काम है। अगर किसी ने पिया है तो उसको बिल्कुल तौबा करना उस पर फ़र्ज़ है। ये फ़ायदा वो फ़ायदा है, नहीं कुछ नहीं चलेगा, तौबा करनी होगी। तो शराब में भी लोग फ़ायदा बताते हैं और हदीस पाक में हराम में शिफा नहीं है, वैसे भी डन करना है हमको, है ना? ऐसा ही है ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है हराम में शिफा नहीं। तो ऊँट का कोई खून पिएंगे तो शिफा थोड़ी होगी, बर्बादी होगी। अब ज़ाहिरी तौर पर किसी मरज़ का दब जाना या कम हो जाना ये दलील नहीं होती कि इसकी वजह से सिर्फ इसकी वजह से वो कोई हराम को हलाल कर दिया जाए। तो बग़ैर दवा के भी तो शिफा मिलती है। का बारह मुझे तजुर्बा है, जब नज़ला हो जाता है तो कुछ हो जाता है तो ये हो जाता है, दवा नहीं लेता ठीक हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सा तजुर्बा होगा। तो अच्छा, तो ये ऊँट का गोश्त जो है, ये ऊँट का गोश्त ऊँटनी का दूध जो है वो दीगर बड़े जानवरों से ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाला होता है। यानी गाय भैंस के मुकाबले में ऊँटनी का दूध, ये इसमें ग़िज़ाइयत एनर्जी ज़्यादा होती है। ऊँट का गोश्त जिगर के वर्म यानी लीवर पर जो स्वेलिंग होती है, सूजन, उसमें फ़ायदा देता है। अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने हयातुल हयावान लिखी है, तो फरमाते हैं कि कहा जाता है कि ऊँट हैवानात में शदीद कीना और बुग़्ज़ रखने वाला जानवर है। इस तरह तमाम जानवरों में सिर्फ ऊँट ऐसा वाहिद जानवर है कि जिसका पित्ता नहीं होता। पित्ता यानी गाल ब्लेडर इंग्लिश में बोलते हैं, तो जिसका पित्ता यानी गाल ब्लेडर नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। महर सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जानवर का सींग टूट जाए तो उसकी कुर्बानी का क्या हुक्म होगा, और इसी तरह जानवर बेचने वाले वो जड़ से भी सींग उखेड़ देते हैं, तो इस सूरत में भी उसकी कुर्बानी होगी या नहीं? अगर सींग जड़ से नहीं कटा तब तो हर्ज नहीं है, है ना? और उसको घिस कर गोल वगैरह लोग करते हैं, होता उसके लिए ये भी थोड़ा तकलीफ दे, लेकिन बहरहाल नाखून हम काटते हैं तो हमको तकलीफ नहीं होती। तो सींग भी इसी तरह की चीज़ है कि इसको उस तरह की तकलीफ नहीं होती, लेकिन काटते हो तो हिलता होगा और यूँ झटके आते होंगे, वो तकलीफ। लेकिन जड़ से उखेड़ना ये तो बिल्कुल वैश्याना काम है, जंगलियों का काम है। मुझे बहुत पहले एक कैटल फार्म वाले साहब भाई ने बताया था, एक लड़का दिखाया, छोटा सा लड़का था,
दाढ़ी भी नहीं निकली थी। बोला ये माहिर है सींग निकालने का, मगर मुझे उसने ये भी कहा कि आप देख नहीं सकेंगे, ये इतनी तकलीफ होती है जानवर को, तो ये शरन जायज़ नहीं है, जानवर पर जुल्म है। तो ये आजकल ट्रेंड है ये कि सींग निकाल के जानवर को खूबसूरत बनाते हैं और महंगे बेचते हैं। कैटल फार्म वालों को खुदा हिदायत दे कि चंद सिक्कों की खातिर ऐसा ना करें। अगर समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मौलाना क्या समझ पड़े, आप समझ लें, मैं जो बता रहा हूँ, अपने बाल पकड़े तो खींचे जोर से, अगर आपको कुछ ना हो ना तो दोनों सिंग खींच लेना, नानी याद आ जाएगी आपको। जब आप नहीं खींचें, आप होले होले खींचेंगे, ऐसा किसी और को देंगे जरा मेरे बाल खींच के यार थोड़े ये आगे पीछे थोड़ा यूँ खींच ले थोड़ा, तो मेरे बाल सेट हो जाएंगे, आप कभी भी नहीं खींचने दोगे। तो ये बेज़बान जानवर बेचारा जो आपके कंट्रोल में आ गया है, आपके पल्ले बंध गया, तो आप ये इसके साथ ये सलूक कर रहे हैं, बचकर जाओगे कहाँ, मरना तो पड़ेगा। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, यही बेल जिसके आपने सींग काटे ना, और सींग लेकर आ गया आपने, या बगैर सींग का भी आ गया तो इसकी दिक्क जो है ना, इसकी टक्कर ये भी कम नहीं होती। और ये कब्र में आपके पास आ गया कि मेरे रब ने मुझे तुझे सजा देने के लिए भेजा है, तूने मेरे सींग निकाले थे, अब बुला, कौन तुझे बचा सकता है? ला छुरियां, ला बोगदे, ला औजार, क्या होगा? और एक टक्कर मारेगा तो जमीन में धंसा देगा। ये मैं डराने के लिए अपने तौर पे कह रहा हूँ, ऐसा कोई अजाब कुरान और हदीस में मैंने पढ़ा नहीं है, एक अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक से डरना चाहिए कि इस तरह मतलब ये कि नहीं करना चाहिए जुल्म। बड़े बड़े सींग वाले जानवर पहले यही बिकते थे, हमने बड़े बड़े जिंदगी गुजर गई, पहले तसव्वुर नहीं था इस तरह। ये सींगों की तरकीब ये कुछ साल से शायद हुई है, ये सींगों की तरकीब। अब खुदा जाने क्या क्या करेंगे आगे जाके ये लोग, पैसों की खातिर जानवर को तख्ता मश्क बनाते हैं। नहीं, मेरे कैटल फार्म वाले जो भी मोहब्बत वाले मुसलमान सुन रहे हों, या मेरा क्लिप अगर ये निकले और इन तक पहुँचे, तो खुदा के लिए अपनी आखिरत की बेहतरी के तौबा कर रहे। बड़े सींग वाला जानवर भी बिकेगा, अल्लाह रोज़ी देने वाला है, बेल रोज़ी नहीं देगा, सींग आपकी रोज़ी में रुकावट नहीं बनेगा। या कितना खाओगे यार, इतनी रकम होती है, इतनी रकम होती है पास, फिर भी हल में मस्जिद का बोर्ड लगा होता है कि और चाहिए और चाहिए, और बंदा कब्र में उतर जाता है। कल ही तो मैंने सैयदी मुर्शिदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह का कौल सुनाया था कि रब से दौलत की कसरत मत मांगो, बरकत मांगो। कसरत वाले रोते यार बरकत नहीं है। आपने देखे ना हो, मैंने देखे लोगों कि लोग बोलते हम बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। बरकत मांगी कब थी? कसरत बनेंगे तो ज्यादा, वो छप्पर फाड़ के दे, बहुत सारा माल चाहिए, बरकत नहीं होती उसमें। तो बरकत मांगेंगे तो वो रब की हिकमत है कि वो आपको कसरत देकर उसमें बरकत दे दे। वो किल्लत में आपको आजमाइश के लिए मुब्तला करके वो आपको बरकत ऐसी दे कि आपको कनाअत मिल जाए, सुकून मिल जाए। इससे बड़ी दौलत क्या है यार? पैसे अगर किसी को काम आते होते ना, कारून जमीन में कभी न धंसता। कारून की दौलत मशहूर है, तकरीबन सभी जानते होंगे। इतना खजाना था कि इसके खजाने की चाबियां 40 आदमी उठाते थे। खजाना कितना होगा? उस दौर की चाबियां, उस दौर का संभालने का अंदाज जो भी था, अब अगरचे वो अंदाज ना रहा, लेकिन बहरहाल ये कि इबरत तो है ना, वो अपने खजाने के साथ जमीन में धंसता जा रहा है। तो दौलत बादशाह काम आती तो फिर कभी दरिया नील में गरक ना होता। बादशाह तो थी, अगरचे खुदाई का दावा किया था, लेकिन बादशाह थी उसकी। नमरूद आपको पता है, कोई टेक्नोलॉजी उस दिनों हम जैसी नहीं थी, न सवारियां न हवाई जहाज, इस तरह के, पूरी दुनिया का बादशाह था नमरूद। तो अगर किसी को बादशाह, आज का बादशाह, सैकड़ों बादशाह आजकल पाए जाते होंगे, आज का बादशाह अगर गौर करे तो यार जो मतलब सारी दुनिया का बादशाह था, वो मतलब एक लंगड़े मच्छर के हाथों मारा गया। हाँ, मच्छर भी बताते हुए लंगड़ा था, मैंने पढ़ा इसका, भेजे में घुस गया था उसके सजा देने के लिए, और इसको डंक मारता था, यहाँ तक कि इसको इतनी तकलीफ थी कि जिल्लत ये हुई कि इसको जब कुछ मारते थे ना तो इसको कुछ सुकून मिलता था,
तो जो भी अब इसके पास आता था ना तो इसको मतलब जूते मारते थे ना, जूते या फट्टे कुछ मारते थे इसके सर पे। ये कायदा बन गया था कि जो इसके पास आए तो मारे। फिर एक बार किसी ने बस उसका जब वक्त पूरा गया किसी ने मारा तो इसका तरबूज फट गया, सर फट गया उसका, तो भेजा और मतलब मर गया, जिल्लत की मौत, कुफ्र की मौत मर गया। तो अगर बादशाह किसी को बचा सकती तो हामान वजीर फिरौन का, है ना, फिरौन का वजीर हामान बड़ा मतलब कि मक्कार शख्स था। जन्नत इसी ने बनाई नहीं, जन्नत तो शद्दाद ने बनाई थी। तो खैर वो हामान वजीर आज वो भी कहाँ है। फिरौन ढीला पड़ता था अपने कुफ्र के बारे में, तो हामान उसको टाइट करता था कि तू खुदा होकर ऐसा करेगा। खैर तो ये भी गरक हो गया, जिनका कोई नाम लेवा नहीं है, नाम लेते हैं तो इसका इनका हकारत से जिल्लत के साथ नाम लिया जाता है। लोग तो लानत मलामत करते हैं कि दरिया नील में डूब मरा, नमरूद को लंगड़े मच्छर ने हलाक कर दिया। तो ये अल्लाह से डरता रहे बंदा, रब की कुदरत बड़ी, हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सांस लेने की भी हमें अपने आप कुदरत नहीं है, रब ने दी है, ताकत तो ले रहे। जिस दिन रब ये रोक लेगा ना तो अब दुनिया की कोई ताकत सांस नहीं दे सकेगी। जी आप बोलेंगे वेंटिलेटर पर रख देंगे, वेंटिलेटर वाले भी तो बोलते हैं ना कि अभी वेंटिलेटर निकालो, पूरा हो गया टाइम। अब इसमें भी फिर वो बदमाशियाँ चल रही है अस्पतालों में, शायद आपको पता हो, बाज़ और वेंटिलेटर नहीं निकालते, जो चार्ज बनता है ना, इनको पता होता है कि बंदा मर गया, ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो सब में नहीं लेकिन ऐसा भी होता है कि वेंटिलेटर जो है ये नहीं निकालते, कि जितनी घंटे ये पड़ा रहे, खानदान वाले आएंगे करेंगे तो जब पूछेंगे पता चलेगा, तो यूं भी बात हुआ जी टाइम निकाल देते हैं। तो मीटर चल रहा होता है इनके किराए का, उसका मशीन का, है ना, लाशों के सौदागर चारों तरफ बिखरे हुए। इनको ये नहीं पता कि मेरी लाश ऐसा ना कि कुत्ते खाएं, गिद्ध उठाएं और पछाड़ें बादलों में ले जाकर, नहीं, खौफ ही नहीं। सबको अल्लाह के कहरो गज़ब से डरना चाहिए, तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों से कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं सबसे बुरा हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले का सवाल पूरा हो गया था, जवाब जी गुजरे तो नहीं, सींग टूटने के हवाले से था, हो गया ना। जी जी। इसमें ये कि अगर सिंह, जैसे तो आपने बड़ी तफसील के साथ इरशाद फरमा दिया जो जुल्म होता है, लेकिन ना जी जी अगर किसी ने तोड़ दिया तो क्या तो उसने गलत जड़ से उखाड़ते हुए जो जुल्म वाला मामला हुआ, या बिलफर्ज टूट ही गया लड़ाई करते हुए या किसी और वजह से जानवरों के टूट जाते हैं, तो अगर ज़ख़म मुंदमिल हो गया उसका, यानी भर गया ज़ख़म उसका, तो इस सूरत में भी कुर्बानी उसकी हो जाएगी। जी जी हाँ, कुर्बानी होगी नहीं होगी ये तो बात ही नहीं हुई थी। अच्छा हाँ, ये तो है कि कुर्बानी, वो सिंग टूट गया या काट दिया, जड़ से नहीं उखाड़ा, कुर्बानी हो जाएगी। जड़ से उखाड़ दिया, इसी हाल में कुर्बानी अब नहीं हो सकती, लेकिन जख्म भर गया, छुप गया जख्म ना, भर जाते हैं, अब कुर्बानी हो जाएगी। या कुछ निकलेगा तो जख्म भर जाएगा तो कुर्बानी हो जाएगी। माशाअल्लाह, ये सिंग टूटा हुआ दिखा रहे, इसकी हो जाएगी कुर्बानी। मगर ये ऐब है, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं कुर्बानी हो जाएगी कि सिंग टूटा हुआ है, लेकिन ये ऐब है। बेहतर ये है कि पूरे सिंग हो। तस्वीर पूरी फ्रेम पे दिखा दें, वो तस्वीर पूरी स्क्रीन पे दिखा दें। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बेल की, तो इसका एक सींग टूटा हुआ है, चूंकि ये जड़ से निकला हुआ नहीं है, तो इस ऐब की वजह से ऐसा नहीं है कि इसकी कुर्बानी नहीं होगी, हो जाएगी। मगर बेहतर ये कि कुर्बानी के जानवर में छोटा ऐब भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश जानवर हो, ये अफजल है, बेहतर है। ये देखो माशाअल्लाह, इसके सींग दोनों दुरुस्त हैं और रंग भी किया है, चांद बेल। अच्छा हाँ, तो अब भी ये चांद की तरह ये, मगर ये इसके
रंग काला और सींग सफ़ेद होते हैं ना, तो चांद देखने में तो सफ़ेद ही नज़र आ रहा होता है, चमकदार। ये इसके बादल सफ़ेद हैं, चांद को काला कर दिया है। नईम शकील मेमन कराची के इलाके करीमाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। जिलहज्जा शरीफ के 13 का रोज़ा तो हराम है ना, मना है। 14-15 रोज़ा का रखें या मौकूफ कर दे? जवाब दे दीजिए। अल्लाह ताला को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपका साया तादेर हम पर दायम रखे। माशाअल्लाह। साल में 5 रोज़े जो हैं वो हराम है। रमज़ान शरीफ के बाद जो ईद उल फितर आती है उसका एक दिन, और बकरीद में 10, 11, 12, 13 4 दिन का रोज़ा हराम है। तो यूं कुल 5 रोज़े हो गए। अब 14-15 को कोई रोज़ा रखता है तो भले रखे, कोई हर्ज नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ताहिर सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उम्रा मुकम्मल करने के बाद क्या आप खुशबू वाला साबुन सर पर लगाकर अपना हल्क खुद कर सकते हैं? जब उम्रा मुकम्मल हो गया तो ये उम्रा मुकम्मल उस सूरत में होगा ना कि जब हल्क भी हो जाएगा। जब हल्क का टाइम आ गया, हल्क या कसर का, तो इतनी गुंजाइश तो है कि अपना 2 हैं, दोनों का टाइम पूरा हो गया, गंजा करने या वो हल्क करने का टाइम आ गया, तो दोनों एक दूसरे का कर सकते हैं। यानी कि जिसका भी नहीं हुआ वो भी अपना या दूसरे का कर सकेगा। ये है खुशबूदार साबुन की जो ममानत है, तो वो वैसे ही। अब वो खुशबूदार साबुन, खुशबू कौन सी मना है, जिर्मदार वगैरह, तो इसके फिर अलग मसाइल हैं। लेकिन मुतलकन खुशबू से, इस साबुन की खुशबू से भी बचना अच्छा है, तो इसको मतलब ना लगाएं। फिर यह कि साबुन के लगाने से मेल उतरेगा, मेल उतारना भी जायज़ नहीं है। तो इसलिए जो गंजा करने का, हल्क बनाने का टाइम तो आ गया है। इसकी अभी इजाज़त नहीं है, यानी नरम करने के लिए, मेल उतारने की इजाज़त नहीं है, बाकी नरम करने के लिए पानी कर सकते हैं। खाली पानी से। आपका वीडियो क्लिप भी इस हवाले से मौजूद है। जी जी, पानी से भी, पानी असल नरम पानी से होते हैं। बाल साबुन से भी होते होंगे लेकिन पानी से नरम होता है। नाखून काटने से पहले इसको पानी लगा देना, ये भी गालिबन मुस्तहब है, पढ़ा है मैंने। इससे नाखून थोड़ा नरम हो जाएंगे। तो नरम होने में हमारा फायदा यूं हो कि आसानी होती है ना काटने में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम हाफिज आबिद हुसैन अत्तारी है। मैं चनेओट से अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि शब कोर जानवर, ऐसा जानवर जिसको रात के वक्त दिखाई नहीं देता, इसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है? शब कोर जानवर यानी नाइट ब्लाइंड जानवर जो होता है, अगर उसमें कोई और ऐब ना हो जो कुर्बानी के लिए रुकावट बने, तो उसकी कुर्बानी हो जाती है। मेरा नाम मोहम्मद कमर अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ सराय आलमगीर से। मेरा सवाल ये है, क्या हकीके का जानवर घर पे ज़बह करना ज़रूरी है? जी नहीं, जिस तरह कुर्बानी का जानवर घर पे ज़बह करना ज़रूरी नहीं है, हकीका का जानवर भी जहाँ चाहे ज़बह करें, किसी को वकील कर दें वो ज़बह कर दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर जैद के बैग में किसी का स्केल आ गया, दर्जे के तमाम बच्चों से पूछा मगर किसी का ना था, अब जैद इस स्केल का क्या करे? क्या आ गया समझ नहीं पड़ा। स्केल, अच्छा क्लास में। अब स्केल का कोई मालिक ही नहीं मिल रहा। अब वो क्लास पूरे स्कूल में पूछा या क्या मतलब, बहरहाल ये कि ये अब क्या हुआ, लुकता ही हुआ कि नहीं। अगर कोई सी सूरत नहीं है कि मालूम हो जाए, हो सकता है जिसका हो वो छुट्टी पर चला गया हो बच्चा, तो कुछ दिन तक लिख कर लगा ले, या कोई ऐसा कि भाई एक स्केल मिला है, वो निशानी देकर ले लें, टीचर के पास रखवा दें। अब वो फिर भी मालिक नहीं मिलता, उम्मीद खत्म हो जाती है,
मालिक मिलने की। तो अब जिसने पाया वो अगर फ़कीर है, शरअन गनी नहीं है, फ़कीर है, तो वो रख सकता है, वरना किसी फ़कीर को दे दे, या किसी भी नेक काम में, जैसे चंदे में, मस्जिद के चंदे में, मदरसे के चंदे में, इसमें भी ये दिया जा सकता है। फिर भी अगर मालिक आ गया तो देना आएगा, देना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या वालिदैन नाफरमान औलाद को ताने दे सकते हैं? मुबम सवाल है, किस तरह के ताने, क्या मतलब। बाज़ औक़ात माँ बाप ऊपर रहकर औलाद को नाफरमान बनाते हैं, इतने ताने मैंने, बात बात पे टोकना, झाड़ना, तजलील करना, सबके सामने को डिग्रेड करना, तो औलाद फिर यूं भी नाफरमान हो जाती होगी। तो एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, तो जो ऐसा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना है, और अपनी औलाद से माफ़ी भी मांगनी है। जी हाँ, बाप भी बेटे से माफ़ी मांग सकता है, माँ बेटी से माफ़ी मांगे, बेटे से माफ़ी मांगे, जिसने जुल्म किया वो माफ़ी मांगे। तो बिला वजह झाड़ना, इसकी माँ बाप को शरीयत ने इजाज़त थोड़ी दी है। तो ताना तो बहुत ख़राब चीज़ होती है। SMS के ज़रिए सवाल कर रहे हैं, नईम उमर हैं, कि रात के वक्त कुर्बानी करना कैसा है? कुर्बानी का ताल्लुक रात से नहीं है कि ना करे या करे। कुर्बानी में असल 2 रातें और 3 दिन है। 10वीं जुलहज तो दिन है, फिर अब 11वीं रात और 12वीं रात, ये भी कुर्बानी के औकात में शामिल है। कुर्बानी उसमें करेगा तो हो जाएगी। सर मसला ज़बह का था सारा साल, मतलब कि जब भी रात में ज़बह करे और अंधेरा है तो मकरूह है, वो ज़बह मकरूह है, नापसंदीदा है कि उसमें रगें कितनी कटी और इसका अंधारे में शुबा रहेगा, सही कटा के नहीं कटा। तो अगर बत्तियों का इंतज़ाम दुरुस्त है, लाइटिंग, जैसे आजकल तो लाइटिंग बहुत है, तो लाइटिंग में अगर करता है तो रात को ज़बह तो अब मकरूह भी नहीं है, वो ममानत नहीं है। और कुर्बानी से तो वैसे इसका ताल्लुक नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है, अली शहजाद इकबाल नगर से सवाल कर रहे हैं, अगर किसी पर गुज़िश्ता सालों में कुर्बानी वाजिब हो और उसने जो है कुर्बानी ना की हो, तो क्या ऐसा शख्स इस साल अपनी बकिया कुर्बानी अदा कर सकता है? उसको अगर वाजिब थी तो एक बकरा, ये उन दिनों की कीमत का है ना, जिन दिनों नहीं की थी उन दिनों क्या कीमत थी बकरे की, तो बकरा लेकर, या उतनी कीमत नहीं लेगा। अच्छा हाँ, उस बकरे की उतनी कीमत किसी ऐसे शख्स को दे दे, सदका कर वाजिब हो जाएगा। तो ये उस ऐसे शख्स को दे दे जिसको ज़कात देना जायज़ है। अब कुर्बानी नहीं कर सकता ये। इस साल की तो अंडरस्टूड है कि उनके औकात में ये करेगा जो कुर्बानी के औकात है इनमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछली कुर्बानियों का हिसाब लगा लेना चाहिए। पहले जानवर सस्ता था, मैंने तो ऐसे सस्ते जानवर देखे, आप ताज्जुब होगा, मैंने 50-60 रुपए का टुकड़े टुकड़े मेंढे और देखे। तो अब तो खैर कटाई भी महंगी हो गई है, 3-3, 4-4, 5-5 रुपए तो कटाई होती थी। वो भी दौर था जो मैंने जिस तरह का देखा है। इससे पहले और भी सस्ता होता था, आमदनियां भी कम होती थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह अल्लाह
बिस्मिरा कर कलामे इलाही दिया जो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। मेरी उल्फत का दीप से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। अल्लाह पाक बाबा जान को हज पे बुला और मीठे मदीने दिखा। आमीन। प्यारे बाबा जान, अल्लाह पाक आपको दराज़े उम्र बिल खैर अता फरमाए, आपका साया हमेशा हम पे बना रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं और दिल नवाज सदाएं, सद करोड़ मरहबा। अल्लाह करीम आप सबको आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। आपको अपने माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, बाल बच्चों, दादा दादी और ख़ानदान वालों के समेत, ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज माशाल्लाह आलमी मद्दी मरकज़ फैज़ान मदीना में हमारे इंटीरियर सिंध से जो इस्लाम भाई आए, इनके अलावा इब्राहिम हैदरी, कायदाबाद, गडाब, गुलशन हदीद, मेमन गोट और बल्दिया, माड़ीपुर, केमाड़ी वगैरह के भी आशिकान रसूल जो है वो कसीर तादाद में हाजिर हुए हैं। माशाअल्लाह, सबको मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम। खुसूसी मदीना मुज़ाकरे में भी रुकना और रोज़ा भी अगर रखें तो सही नसीब। आजकल रोज़ा भी रखा जाता है अपने 9 रोज़े अगर कोई रखने की नीयत हो तो ये इसको फर्स्ट मुमताज़, ये इस्लाह अमाल का जो शोबा है उसकी तरफ से ये कैटेगरीज हैं। 9 रख की नीयत हो तो मुमताज़, 5 रोज़े रखने की नीयत हो तो बेहतर, और 3 रोज़े रखने की नीयत हो तो मुनासिब। तो ये नीयतें अगर हैं आपकी तो नात दिया हो पैगाम तो इस्लाह अमाल के शोबे को अपने ज़िम्मेदार के थ्रू दे दे। तो ये नीयतों के भी बयान होते हैं कि आज इतनी हुई, कल भी कई हज़ार की नीयतों का ऐलान हुआ था, आज भी इंशाअल्लाह ये फिगर बताया जाएगा। ये 10 दिन के अंदर रखने तो इनके फ़ज़ाइल भी बहुत हैं। और 10 दिन जो हैं ये रमज़ान शरीफ के बाद सबसे अफजल ये ज़ुल्हिज्जा के, ज़ुल्हज शरीफ के ये 10 दिन है। अशरा, पहला अशरा, फजीलत बहुत है इसकी। और जो इस दिन, इन दिनों में 10 दिनों में जो अमल है वो 700 गुना से भी ज़्यादा इसका अजर सवाब है। तो कोई नेकी वैसे नहीं छोड़नी चाहिए, इन दिनों ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। तो हो सके जिसको कोई आजमाइश ना हो तो रोज़ा भी रखना। ये माशाल्लाह बता रहे हैं कि इंटीरियर सिंध से जो आए हैं वो 3 दिन के लिए यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, भले करे आया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ सवालात आपसे करने। ये जानवर को जो चारा खिलाया जाता है ये कितनी देर में इनको खिलाना चाहिए? यूं तो मतलब ये कि लिखा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दिन में 70 बार, 60 बार, 70 बार, दिन में 70 बार चारा उसको दिखाया जाए, दिया जाए। ये फिगर जो है 70 का, ये आमतौर पर न बार बार, बहुत बार नहीं इसको, क्योंकि ये मांगेगा नहीं आपसे। तो इसके बाद चारा, और ये जानवर जो होता है ये हमारी दिन में 3 टाइम नहीं खाता। अब तो हम भी जानवरों से रेस्ट में पीछे नहीं है।
हर वक्त बिचरते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो हालांकि बुजुर्गों ने तो यहाँ तक लेगा जो 3 दिन में 3 टाइम खाए ना, तो उसको किचन के साथ बांध दो, इसको घोड़ों के तवेले में बांध दो, खाता रहे। इंसान का कम खाना पीना नहीं है, जानवर का है। इंसान खुर्दन बराए जिस्तन, इतना खाए जिससे जिंदा रहना हो जाए उसका। और अब हो गया जिस्तन बराए खुर्दन, हम खाने के लिए जिंदा है और खाने के दिन आ रहे हैं। अब हट जाओ, अब तो बोटियों के दिन आ रहे हैं। तो जो कसम खा लेना कि पेट का कुफले मदीना लगा लूँ, वो शायद किसी को पूछे कफारा क्या इसका, कसम जो इसमें खा ली थी मैंने। बड़ी आजमाइश है ना बकरीद में। तो भी खाने की थोड़ी है, शुक्राने की ईद है। बेशक खाए, लेकिन ज़ाहिर है कि ये थोड़ी है कि पूरा बकरा उंडेल दे या पूरी रान चबा दे। जितना मतलब है कि पेट कबूल करे, सेहत ताउन करे, उतना ही खाना है, तबर्रुकन खाना है। गोश्त पाक की नियाज हम बोलते बेशक बरकत वाली है। तो अल्लाह की तरफ से जो कुर्बानी हुई वो कितनी बरकत वाली होगी, सोचने की बात है। तो ये कुर्बानी का गोश्त भी तबर्रुक है, बहुत बड़ा तबर्रुक है, हम लोग नहीं समझते, ये फेंकम फेंक करते हैं इसको। और कोई अदब बेअदबी कोई तस्वुर हमारे यहाँ पाया नहीं जाता। लेकिन कुर्बानी के जानवर का भी बड़ा अदब है, इसका मान है भाई। आप शादी के लिए जानवर लोगे तो उसको हार तोरे थोड़ी पहनाओगे, गजरे थोड़ी डालोगे, इसको मेहंदियाँ थोड़ी लगाओगे। कुर्बानी के जानवर के साथ ही ये सारा कर रहे हैं आप। तो ये कोई है तस्वुर तो ना, वाह हटिया ये अल्लाह पाक की राह में कुर्बान होगा। बड़ा खुश नसीब जानवर है कि इसका इंतखाब राह खुदा में कुर्बान होने के लिए हुआ है। तो यूँ मतलब ये कि उसका अदब, तो बेशक उसके गोश्त का भी अदब है, उसकी खाल का, उसकी हड्डियों का बादब बानसीब। अल्लाह नसीब करे हमको अदब। सुना ही पहली बार है ना इसका अदब, तब करेंगे भी इंशाअल्लाह, भले पहली बार ही हो। जितना हो सके, है बहुत मुश्किल अदब करना, लेकिन जितना हो सके अदब करना चाहिए। हड्डियाँ भी बिक जाती हैं, तो इस तरह फेंकने की सूरत है तो आदमी को साइड में रख दे, हड्डियाँ ढूंढने वाले निकलते तो उठा के लेगा। हम कचरा कुंडी में गंदगियों में काय को डाले यार, कि उनको भी काम ना है। इसी तरह बाद आज़ा लोग इन दिनों नहीं खाते, ये फेफड़े वगैरह भी नहीं खाते लोग, हालांकि खाने की चीज़ है। मेरा तो मशवरा कि फेफड़े के भी छोटे छोटे टुकड़े करके कुर्बानी का गोश्त जिनको दें उनको दे देंगे, तो बाद लोग खाएंगे। कोई मुंह बनाएगा तो एक ही पीस हो, ज़्यादा ना हो, दूसरा गोश्त तो होगा ही ना। तो कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा, तो आप कम से कम आपकी तरफ से ये तो नहीं होगा कि आपने इसको कचरा कुंडी में डलवा दिया फेफड़े को। ये नहीं, खाने की चीज़ आम दिनों ये बिकता है। जी हाँ, ये नहीं कि सस्ता बिकता है, बिकता है, मान होता है इसका आम दिनों, हर चीज़ का मान होता है। तो जो जो हो सके जिन चीज़ों का, तो उसका जो निकलता नहीं वो ओजड़ी वगैरह, इसका भी फतह रज़विया शरीफ में आला हज़रत फरमाते हैं कि आंतें और ओजड़ी जो है जानवर की, इसको दफन कर दिया जाए। अच्छा, अब ये जो कच्चे इलाके होते हैं उनमें तो ये हो सकता है ना, बड़े शहरों में मुश्किल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कुदार फावड़ा लेकर रोड खोद दो और पुलिस वाला आ जाए तो उसको कुछ दे दो, चला गई, तो गुनाह कर जाएंगे। तो यहाँ खोदने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। रोड जहाँ मुमकिन हो, जैसे कि तो वैसे ही मुफीद भी चीज़ है। अगर कहीं खेत है जैसे उसमें दफन कर दिया तो खेत को इसका फ़ायदा होगा। ये खाद दरख्तों के लिए, पौधों के लिए कारामद होती है। इस तरह बाज़ों के बड़े बड़े घर देहातों में और कच्चे कच्चे होते हैं, बहुत कच्ची जगह होती है इनके पास, तो ये 10 उजड़ियाँ दाब देंगे कुछ भी नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ मुमकिन हो तो वहाँ ऐसा दफन इसको कर देना अच्छा है। नहीं किया तो गुनाहगार भी नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। और शहर में तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो दफन करने में ये कि इसके जरासीम भी नहीं फैलेंगे, गंद कचरा होता है ना उसमें, और बीमारियां नहीं फैलेंगी। लेकिन हमारे यहाँ तो बाज़ों का तो इतनी देर तक या घंटों तक या बाज़ जगह तो दिनों तक भी पड़ी रहती होगी और गंद फैलता होगा, बदबू फैलती होगी, जो ज़ाहिर है कि बीमारियाँ तो फैलेंगी ना इससे। कि इंतज़ामिया उन दिनों हरकत में होती है और सियासी लीडर भी हरकत में होते हैं, तो ये लोग उठवा रहे होते हैं। उठवाना भी चाहिए और सवाब के लिए उठवाना चाहिए, अच्छी नीयत के हम लोगों को तकलीफ से बचा रहे।
तकलीफ से एक मुसलमान को बचाना ये भी कार्य सवाब है। तो ये शहरों में और नुमाया जगहों में तो पोश एरियाज में इसमें ज़्यादा निज़ाम बेहतर होता है। वो कमज़ोर इलाके, कॉलोनियाँ, गरीबों की आबादियाँ, इसमें थोड़ा कमज़ोर इंतज़ाम होता है सफाई का, तो ये नहीं होना चाहिए। जहाँ भी मुसलमान है काबिल एहतराम है, हमें इसका सबको, लीडरों को, कायदीन को, इंतज़ामिया को समझना चाहिए इस चीज़ को। सबके साथ मोहब्बत भरा, प्यार भरा, हमदर्दाना सुलूक होना चाहिए। ये सवाल ये था कि जानवर को चारा कितनी बार खिलाना चाहिए? कहा ना 70 बार का हज़रत ने इरशाद फरमाया, तो इसका मतलब भी बताया मैंने कि बार बार, क्योंकि ये गरीब मांग नहीं सकता, ठीक, भूखा न रखा जाए इसको। कुर्बानी के जानवर को घर की बची हुई रोटी और दीगर फ्रूट के छिलके वगैरह खिला सकते हैं? वेटरनरी डॉक्टर से पूछ लिया जाए। अच्छा, ये बीमार हो गया तो फिर कुर्बानी के लिए कई मसले खड़े ना हो जाए। कुर्बानी के जानवर किसको पालने के लिए दे सकते हैं? किसी को कुर्बानी के जानवर किसी को पालने के लिए दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन नफा नहीं उठाएगा ना, ये उठाएगा। अब वो किस तरीके से दिया है, क्योंकि आमतौर पर इसमें शिरकत की जाती है और वो शिरकत फासिद होती है कि वो पालता है और फिर बच्चे होते हैं तो वो आधे आधे बांट लेते हैं, ये शिरकत फासिद है, ये जायज़ नहीं है। फिर उसके पूरा तरीक़ेकार है कि किस तरह किसी को पालने के लिए देना है, उसको अजीर रखना है, काम पर रखना है, उसकी उजरत देनी है और शिरकत करनी है, तो फिर उसके तरीक़ेकार है। हमारे आबादों का ऐसा भी होता है कि जैसे ईद गुजर जाएगी तो अभी तो जानवर चूँकि महंगे हैं, जब ईद गुजर जाएगी तो जानवरों की कीमत नीचे भी आ जाती है, तो फिर कोई ऐसा जानवर के जिनके बारे में होता है कि ये 1 साल तक पलेगा तो थोड़ा और सेहतमंद, अच्छा और ख़ूबसूरत हो जाएगा, तो ये जानवर फिर बाद में ख़रीद कर किसी को दे देंगे कि यार ये गांव में, देहात में, या उसी को दे देंगे, इसको पालें और हमसे आप इसका वो इजारा कर लें या तय कर लें। केटल फार्म वाले भी रखते हैं मेरा ख्याल है, तो इस तरह के जानवर। तो इस सूरत के बारे में क्या फरमाते हैं? अगर तय कर लेते हैं कि ये माहाना इसको इतना रकम देंगे और जो ख़र्चा इसका होगा ये इस जानवर वाले ही का होगा, तो फिर ठीक है। ये सूरत जो है वो शिरकत की नहीं होती, पार्टनरशिप की नहीं होती, ये इजारे पे रखने की होती है, नौकरी पर रखने की होती है, काम पर रखने की होती है कि उसको काम पर रखा है, काम भी बता दिया और उसकी उजरत भी बता दी है। कुर्बानी के जानवर को गर्मी में नहलाना कैसा? आजकल जैसे गर्मियां हैं तो पाइप वाइप लेकर, ये इस तरह के जो भी काम है ना, ये वेटरनरी डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए कि इसको ये गर्मी से तपा हुआ और इस पर एकदम ठंडा पानी डाल दिया जाए तो इसको कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। जैसे एकदम आदमी, इंसान में हाँपता कांपता गर्मी में, मतलब ये तपता हुआ है, वो ठंडे पानी फुहारे के नीचे खड़ा हो गया ना, फिर बुखार चढ़ गया तो क्या होगा? तो थोड़ा सांस ले ले, दम ले ले। तो अब ये चूँकि ये तिब्बी मसाइल हैं। अच्छा, फिर जानवरों के भी अपने अपने मसाइल होते हैं, जैसे इंसानों के मिजाज अलग होते हैं, जानवरों के मिजाज भी अलग होते हैं। तो इसलिए वो वेटरनरी डॉक्टर, वाकई डॉक्टर होगा ना माहिर, तो गालिबन ये इसका मशवरा मुनासिब दे सकेगा। हम तो अभी तुक्के में बोल देंगे हाँ गर्मी होती है नहलाओ खूब, ये तो 2 पाइप लेकर ये पानी बहाते रहेंगे चाहे कितनी तंगी हो जाए लोगों को। लेकिन अपनी अटकल से बताने के बजाय मैंने प्रॉपर वे अर्ज किया है, मेरी मालूमात नहीं है। तो धूप का भी यही होगा कि इसको धूप में रखना ना रखना, बादों का घर के सामने रहता है तो नज़र आता है, तो इसमें भी डॉक्टर से मशवरा किया जाए या क्या कहेंगे आप? अगर कोई वेटरनरी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं मदरी मुज़ाकरा, तो जल्दी अपना मैसेज भेज दें, हम इंशाल्लाह इसको चलवा देंगे। अगर चलवाने ऐसा हुआ तो सही रिकॉर्डिंग हुई वगैरह, तो उम्मत को फ़ायदा ही हुआ। कुर्बानी के जानवर को चलाने, दौड़ाने, भगाने के लिए इसकी धूम मरोड़ी जाती है, इस ताल्लुक से आप क्या रहनुमाई फरमाते हैं? अब धूम मरोड़ने में देखो, बच्चे को यूँ बाँह पकड़ के खींचते हैं, समझे, बाज़ बार जोर से खींचते हैं ना तो मेरी जान निकलती है कि यार बाजू ना उखड़ जाए। अब ये धूम का हिसाब समझ लें आप कि बाज़ बार ऐसी बेदर्दी से धूम मरोड़ते हैं कि आपने शायद देखा होगा कभी कभी धूम थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी होती है। ये हो सकता है बेचारी का कोई मन का धूम का हट गया हो, ये मोड़ने वाले ने इस पर जुल्म किया हो, ऐसा मरोड़ते हैं कि ये बेजबान किसको, बे करने के लिए वह करेगा क्या? ये तो ये बे करता है तो मजा आता है, तो ये बेचारा चीख रहा होता है, फरियाद कर रहा होता होगा कि मुझे बचाओ इस जालिम से जो मेरी पूंछ के पीछे पड़ गया। तो जानवर को भी सताना हराम है,
जहन्नम लेने वाला काम है बिल्कुल। ये बल्कि मुसलमान से बढ़कर है। मुसलमान पर जुल्म करेंगे, वो केस कर देगा, लड़ेगा, मुकाबला करेगा, ये बेज़बान बेचारा क्या करेगा। इसलिए वो, और कभी ये बेज़बान भी बाज़बान से ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। ऐसी दौलतियाँ झाड़ता है कि कब्र में गाड़ देता है। इससे बचकर भी रहना है, यानी हाथों हाथ बदला ले ले आपसे। तो खैर पूंछ इस तरह अगर पकड़ के थोड़ा हिलाता है और आहिस्ता से मरोड़ता है कि इससे ये चले, ये समझ में आता है। समझे आप? ज़रा इसको प्यार से कान में बोलेंगे चल भाई चल, मेहरबानी तेरी चल, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। समझे? तो यूं थोड़ा हाथ इसको मारा रान पे, पप करके आवाज आएगी। समझे? इस तरह ये डंडी दिखाई, डंडी भी ये ऐसे जालिमाना तौर पर मार रहे होते हैं। गोश्तों पे निशान आपने देखे होंगे, गोश्त लाल हो जाता है और पहचाना जाता है कि इस गोश्त में जो खराबी हुई। ये मुसलसल उस जगह मारते हैं। बाज़ औक़ात पीछे जो रान का हिस्सा है उस पर मुसलसल कोई चीज चुभोते हैं। ये खासकर बेचारा मजलूम गधा जो होता है ना, ये जुल्म ये सहता है। ये डिब्बे में कंकर डालते हैं गधा गाड़ी चलाने वाले, और इसको यूं बिदकता जरूर है, सब भागता जरूर है आवाज से, लेकिन ये या तो ये जख्म बनाते हैं वहां, या मतलब ये उससे डब्बे की धार से जख्म बन जाता है, फिर ये बार बार उस पर टच करते रहते हैं। ये मनाजिर आपने अगर देखे हो तो आदमी यार रो पड़े देखकर, ये बेचारा ये मजलूम जानवर फरियाद किसको करेगा, इतना ये सतारे होते हैं। इस तरह रेस करना लगाते हैं घोड़े की, छोटी सी गाड़ी होती है इसको भगाते हैं, उस पर भी ये डब्बा जो है ना इससे काम कर रहे होते हैं। वो गरीब को ये रेस लगाना मेरा अपने उसके आकाम अपने अगर इसके साथ जुआ खेलते हैं तो ये तो हराम ही हराम है ज़ाहिर। तो वैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये इतना जुल्म जानवरों पर, ना गधा गाड़ी वाला जुल्म करना छोड़ता है, ना घोड़ा गाड़ी वाला कोई मतलब जुल्म करना छोड़ता है। मैं जनरल बात करता हूँ, मैं हर एक की बात नहीं करता। इसी बेदर्दी से चाबू के मारते हुए देखा है कि बेचारा घोड़ा दो टांगों से उछलता होता है, शैप शैप मार रहे होते हैं। यार तू इसकी जगह होता तो एक चाबुक में जमीन के साथ गड़ जाता है। यार खुदा का खौफ कर, कल ये घोड़ा अगर आ गया तेरी कब्र में, निकाल चाबुक कहाँ है तेरी, अब मेरे हाथ में है, क्या करेगा। तो सच्ची तौबा करें, सच्ची तौबा करें और जानवरों पर जुल्म ना करें। बुजुर्गों के तो ऐसे ऐसे वाकयात, एक बुजुर्ग का वाकया है कि वो अपनी चारपाई पर तशरीफ फरमाते कि कोई घोड़े वाला निकला होगा, उसने जोर से चाबुक मारा, तो इतना रहम आया उस बुजुर्ग को कि उनके बदन पर चाबुक का निशान बन गया। इतना रहम आया। तो रहम दिल भी होते हैं, तो रहम का असर अपने बदन पर भी इसका मतलब आ सकता है। अब वो उनकी करामत समझी जाए, ताहम ये कि जानवरों को जुल्म का निशाना ना बनाया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसमें भी अजीब व गरीब होते हैं लोगों की लॉजिक। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जिन दिनों में मस्जिद में अब बयान करता था, तो मैंने इत्तेफाक से जानवरों का टॉपिक लिया होगा, वही जानवरों के बारे में कि जुल्म करते हैं वगैरह, जैसा अभी मैंने बयान किया। तो जो तवज्जो से सुन रहे हैं उनको तो ये समझ में आता होगा और इनको पसंद भी आता होगा कि ये अच्छी बातें हो रही हैं। तो वो दो आदमी उठे, मुझे किसी ने बताया, मेरी डायरेक्ट तो बात होती तो शायद मैं उनको मुतमईन करने की कोशिश करता। तो वो बोला चलो चलो, एक दूसरे को बोला चलो चलो, अभी तो जानवर की शरीयत बयान हो रही है। माज़अल्लाह ये कहकर निकल गए इज्तिमा से बाहर। अजीब अजीब खोपड़ियाँ हैं यार लोगों की, कमाल है यार। पूरी बात सुनते तो पता चलता कि मैं कितनी प्यारी बातें कर रहा होता हूँ इस ताल्लुक से कि मैं हमारी अपनी आखिरत बनाने की बातें कर रहा होता हूँ। मैं आपसे कोई पाई पैसा तो लेता नहीं कि मुझे कोई चंदा दे दो मेरी ज़ात के लिए, या कोई मुझे नजराने दे दो, शुक्राने दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते ही, मैं तो अपनी और आपकी आखिरत की बेहतरी की तो बात करता हूँ, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, उसके हबीब हमसे खुश हो जाए। लेकिन बाज़ अधूरी बात सुनते हैं ना, तो उनको गलत फहमी हो जाती, फिर ये मुँह फट होते हैं तो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि पता चले तो आदमी का दिल दुखे। एक तबका है हुजूर, यार दुनिया कहाँ के कहाँ निकल गई, कहाँ के कहाँ निकल गई, क्या दुनिया तरक्की कर गई यार। ये बातें क्यों इतनी ऐसी ऐसी करते हैं यार, कोई तो उनको लगता था बड़ी बड़ी बातें करे ना, जैसे चांद कब ज़मीन पर आ जाएगा या ज़मीन कब चांद पर चली जाएगी,
ستارہ کب ہاتھ میں آنا شروع ہو جائے گا یا کب ستارے سے لٹکنا شروع ہو جائیں گے، عجیب و غریب کیا باتیں کریں. یعنی یہ وہ طبقہ ہوتا ہے حضور کہ ان کو جو بہت بڑی باتیں سننے کا شوق ہوتا ہے نا دنیا بھر کی، جیسے زمین آسمان کی کلا میں ملا دینے والی، خود ان سے بھی پوچھو نا فرائض و واجبات اور عقائد و نظریات اور کچھ موٹی موٹی باتیں بھی تو شاید ان کو نہ آتی ہوں. یہ تو مولوی جانے، ان کو کپڑے ٹھیک ہے مولوی جانے، لیکن کپڑا پاک کرنے تو یہ غیر مولوی کو بھی تو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. یہ نہیں، یہ ایسے محاورے ان لوگوں کے آپ کو بتاؤں میں، وہ کبھی اس کو استعمال نہ کیا جائے، لیکن ایسے اللہ بلا بر گردن مرا، اس طرح کی باتیں سنی ہوئی ایسے ہے کہ جو بھی اللہ بلا ہے ملا کی گردن پر، نعوذ باللہ. تم اب کلمہ نہیں پڑھو پھر ملا ہی کلمہ پڑھ لے گا، تم قبر میں مت جانا، ملا ہی سب بھگتا لے گا، معاذ اللہ. مطلب ہم مسلمان ہیں یار، ملا نے داڑھی رکھی ہے، علم دین کی باتیں کرتا ہے تو اللہ اور رسول کی تو باتیں کر رہا ہے جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے. تو اتنی اخلاقی تحقیر اور حقارت اور اتنی اخلاقی خرابیاں ہیں، اس قدر عادات بری ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی. جیسے بھی آپ جانوروں کے تعلق سے بیان کر ہی رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ چابک مارنے والے یا وہ ڈبہ مارنے والے زخم، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فیل ہی نہیں کہ جانور کو بھی لگتا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، فیل تو فیل ہو تو بنا جانور بھاگ رہا ہے. بھاگا کیوں؟ مطلب وہ مطلب ڈر کیوں رہا ہے؟ اور ہو کر کے آواز ہو تو پھر جانور ہل جاتا ہے. تو یہ جانور پر جو ظلم کیا جاتا ہے یہ تو ہماری شریعت کا حسن بیان ہو رہا ہے، شریعت کی خوبصورتی بیان ہو رہی ہے کہ شریعت اسلام الدین کتنا مطلب کہ چیزوں کو حقوق بیان کرتا ہے، پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ان میں بندہ خوش ہو نہ کہ یار یہ باتیں ہونی چاہیے وہ باتیں ہونی چاہیے. بنیادی باتیں تو پتہ ہے نہیں. پڑوسی پر ظلم ہو رہے ہیں، لوگوں کے پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، حرام روزی کمانے پر دنیا معاذ اللہ ثم معاذ ایک تعداد اتری ہوئی ہے اور اتنی بد اخلاقی ہو رہی ہے. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ان بنیادی باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. مگر مائنس لینے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، بہت تھوڑی ہے. جب کوئی مطلب اسلامی بھائی وہ ہوتے ہیں نا دل برداشتہ کے، لوگ سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، بولتے تو یار یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا رہا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ مائنر، اگر ایک بندہ کو بڑبڑ کرتا ہے تو 99 بندے میری پیٹھ سبقتے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو. سب موضوع ہوتا یہی ہے کہ یہ نوٹس کیا لے جاتا ہے. جیسے مثلا ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہم پر مطلب کہ 100 آدمی پھول پھینک رہے ہیں، مگر جب پتھر کو پھینکے گا تو پتھر لگتا ہے، تو وہ جو چیز لگتی ہے نا تو وہ نوٹس کرواتی ہے کہ یار یہ مطلب دیکھو یار. تو وہ شریعت و دین کے بارے میں یہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی ہم سوشل میڈیا پہ لائیو ہیں، فیس بک پر یوٹیوب پر ہم کو لائیو دیکھا جا رہا ہے. اور وہاں جب لائیو دیکھا جا رہا ہوتا ہے نا تو اب ٹی وی پر دیکھنے والا تو کچھ بھی سوچے تو اپنے سوچے نہ اپنے سمجھے نہ اپنے کچھ بولے، بہت زیادہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوگا یا پھر زیادہ بند کر دے گا. لیکن جو سوشل میڈیا بیٹھا ہے نا یہ پھر کامنٹ کرے گا، دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھو، پھر اس کو مطلب یہ سلسلہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بات سمجھنے کی کوشش کرے، دین کی، اسلام کی، شریعت کی باتیں ہوتی ہیں، اس آئینہ کو اتاریں جس سے آپ کو ہر چیز مطلب کہ وہ عیبدار نظر آتی ہے، اور ایک اچھی سی خوبصورت سی شریعت کو سمجھنے والے آئینک لگائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مدنی مذاکرے میں وہ کچھ سیکھنے کو ملے گا جو شاید آپ نے زندگی میں کہیں اور نہ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ. جی جواب دیجئے. لبیک. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مبارک زندگی کے کتنے سال گزارے؟ ظاہری زندگی کے کتنے سال گزارے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 53 سال. جواب درست ہے، ماشاءاللہ. حاضر جواب. ادھو تگڑی فیس دے دو. میرے اور میرے والدین کریمین کی بے حساب بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کی عرض ہے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. انشاءاللہ روزانہ 1200 آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. انشاءاللہ. یہ تو آپ کے لیے ہوا، میری دعوت اسلامی کے لیے ہفتہ وار سنت و برشتہ میں انشاءاللہ نیت کی. انشاءاللہ.
तालिब इल्म है? जी अच्छा, तो इमामा नहीं मिलेगा, जुल्फे नहीं मिलेंगी, तो फिर मैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आहिस्ता से आवाज निकली है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इनको दुरुस्त जवाब पर माहनामा फैज़ान मदीना और सैयदी अमीर अहले सुन्नत का ज़बरदस्त रिसाला अबलग घोड़े सवार तोहफे में पेश किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। जवाब दीजिए। लब्बैक। हज़रत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, नाम भी बताइए। और साथ अच्छी नीयत भी पेश कीजिए। और ये पहले, सबसे पहले इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नियत कैसे पेश करूं? बस याद रहा इतना थी। चलो बोलो। मैं फैज़ान मदीना आया हूँ, वो 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स करने के लिए। इंशाअल्लाह करीम। कंफ्यूज हो गए। कल आए थे। मेरी नियत है कि इंशाअल्लाह मैं अपनी नमाज का तरीका दुरुस्त करूँ। इंशाअल्लाह करीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। कुर्बानी क्यों करते हैं, ये रिसाला मकतबतुल मदीना ने शाये किया है और इसके अंदर बहुत सारी माशाअल्लाह कुर्बानी हुक्म खुदाबंदी पर अमल का ज़रिया है। कुर्बानी किस पर वाजिब है, इज्तिमाई कुर्बानी की एहतियातें, कुर्बानी वाजिब हो मगर रकम ना हो तो क्या करें, ये सारी मालूमात इस रिसाले में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है जो इन्हें तोहफ़तन पेश किया जा रहा है। शेर मुकम्मल कीजिए। ये ज़मज़म उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अनीस रज़ा अत्तारी मदनी। प्यारे बाबा जान, इंशाअल्लाह मदनी फीस ये है कि दावत इस्लामी के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खाले जमा करूँगा इंशाअल्लाह। और अच्छी नीयत क्या है? हर माह 3 दिन मदनी काफिला इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, वो भी अच्छी नीयत है, खालों वाली भी। अब वो मदनी क्या बोला, मदनी फीस। अब वो हमने शुरू किया कि मदनी फीस की जगह अच्छी नीयत बोले। ये मदनी फीस में अवाम कंफ्यूज होते होंगे ये क्या होता है। यहाँ देखा कभी कभी जेब में हाथ डालते, चेक करते कुछ, शायद ये अब उठ गए माइक पर आ गए फंस गए तो देना पड़ेगा कोई रकम। ये जमजम उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादियों की तादाद बताइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह उल करीम 28 जून को 1 माह के काफिले में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह उल करीम। 4 शहजादियाँ। जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाह ज़ौजल इनको जानवरों के बारे में दिलचस्प सवाल जवाब और महानामा फैज़ान मदीना तोहफे में पेश किया जाएगा। इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा कहाँ है? अच्छी नीयत भी पेश करें, पहले अपना नाम भी बताएं और फिर जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अकबर मेरा नाम है, कराची से PIB कॉलोनी से तशरीफ लाए हैं। नियत इंशाअल्लाह ताला हर हफ्ते इज्तिमा में शिरकत की नियत करते हैं मदीने में। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा रिसाला और इसके अंदर मौजूद है। क्या बकरियां पालना सुन्नत है? गाय का बच्चा पैदा होते ही बेच देना कैसा? जान का सदका किस चीज़ से दिया जाए? कुत्तों की लड़ाई करवाना कैसा?
जानवरों के बारे में दिलचस्प सवाल जवाब मकतबतुल मदीना से हासिल किया जा सकता है। ये और माहनामा फ़ैज़ान मदीना ने तोहफे में पेश किया जा रहा है। बानी काबा किस नबी का लक़ब है? फैसलाबाद में मौजूद हाजरीन में से एक इस्लाम भाई इस सवाल का जवाब अर्ज करेंगे। माशाअल्लाह। जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। जवाब दुरुस्त है। मदनी आपने नेक की वो अच्छी कोई नियत नहीं बयान की हो। तो बैठ गए। अच्छा पहुंचता देर में थोड़ा चंद सेकंड डिले है वैसे। स्टैंड अप आ गए। हाँ इंशाअल्लाह 24 माह 24 माह 24 माह मदनी काफिला। 25 कर दो ना, तो 25 में शरीफ वाले अब पहले 12 माह में हूँ, मजीद 12 माह, मजीद 13 माह, 12 + 1। अब 25 माह वाले ना अपने, तो 25 में शरीफ वाले ना इंशाअल्लाह मजीद 13 माह इंशाअल्लाह करीम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का नाम बताइए। फैसलाबाद से इंशाल्लाह इस्लाम भी सवाल अर्ज करेंगे, इसका जवाब अर्ज करेंगे इंशाल्लाह। हजरत बीबी हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। मेरी अच्छी नीयत यह है कि हर साल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर 12 माह हर माह 3 दिन का बंदी काफिला इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह इस्तिकामत बख्शे। माशाअल्लाह। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़ा मरवा की सही करना किसकी सुन्नत है? सफ़ा मरवा की सही करना हज़रत बीबी हाजरा रदी अल्लाह अन्हा की सुन्नत मुबारक है। माशाअल्लाह। मैदान अरफात में क़याम करना ये किसकी सुन्नत है? मैदान अरफात में ठहरना अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की पैरवी करना है। सुभान अल्लाह। क्या सवाल है? सही करना और मैदान अरफात में ठहरना ये तो मालूम हो गया, लेकिन तवाफ़ हम क्यों करते हैं और इसकी इब्तिदा कैसे हुई, ये इरशाद फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, आपका सवाल तो बहुत ज़बरदस्त है। आज मदनी मुज़ाकरा है तो क्यों ना हम ये सवाल मीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ करें। प्यारे मीर अहले सुन्नत, आप इरशाद फरमाइए तवाफ़ करना किसकी सुन्नत है और इसकी इब्तिदा कब से हुई? रिवायत है कि एक बार हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह अन्हुमा से एक शख्स ने सवाल किया, काबा शरीफ का तवाफ़ कब से शुरू हुआ, तवाफ़ क्यों शुरू हुआ, कैसे किया जाता था? तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स से पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? कहा मुल्क शाम से हूँ। फरमाया मुल्क शाम में किस जगह से? अर्ज किया बैतुल मुक़द्दस के करीब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, क्या तुमने तौरात और इंजील पढ़ी है? उसने अर्ज किया, जी हाँ पढ़ी है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, ए शामी, मेरा जवाब याद कर लो, तुम मुझसे रिवायत नहीं करोगे मगर सिर्फ हक बात। काबा शरीफ का तवाफ यूं शुरू हुआ कि जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों को बताया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाला हूँ, उस वक्त फरिश्तों ने यूं जाहिर किया कि हम खिलाफत के ज़्यादा हकदार हैं। इस पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 30। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह पाक का ये इरशाद सुनकर फरिश्तों को लगा कि शायद हमारी इस बात से अल्लाह पाक हमसे नाराज हो गया है। चुनाचे
अब फरिश्तों ने अर्श इलाही की पनाह ली, अपने चेहरे ऊपर उठाए, आजिज़ी की, रोए और 7 साल तक अर्श इलाही के गिर्द चक्कर लगाते रहे। आखिर अल्लाह पाक ने इनकी तरफ नजर रहमत फरमाई और अर्श के नीचे इनके लिए 4 सुतूनों वाला जबरजद का एक घर बनाया और फरिश्तों से फरमाया इस घर का तवाफ करो। चुनाचे फरिश्ते उस घर का तवाफ करने लगे। इसी को बैतुल मामूर कहा जाता है। फिर अल्लाह पाक ने कुछ फरिश्तों को जमीन पर भेजा और हुक्म दिया कि जमीन पर भी बैतुल मामूर जैसा और इसी साइज का एक घर बनाओ। फिर जब ये घर तामीर हो गया तो अल्लाह पाक ने जमीन की मखलूक को हुक्म फरमाया, जैसे आसमान वाले बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं तुम इस घर का तवाफ करो। हवाला अखबार मक्का लिल अजरकी, जुज अव्वल सफ़ा 27-29। हम क्यों करते हैं, ये भी सवाल है। हम तवाफ क्यों करते हैं? हम यूं करते हैं कि अल्लाह रसूल ने हमें इसका हुक्म दिया है और ये इबादत है। अच्छा, हुक्म कब इसका? जैसे हज किया जिसने, तो हज के लिए तवाफ बाज हैं, है ना, जिनमें तवाफ ज़्यादा फ़र्ज है। उम्रे में तवाफ वो भी फ़र्ज है, उम्रे में हिस्सा है तवाफ और सई, यानी ये दोनों रुकन है ना उम्रा शरीफ के। तो यूं मत अल्लाह रसूल का हुक्म है, इसके हम तवाफ करते हैं और इसमें सवाब मिलता है और ये इबादत है। तो नफल तवाफ भी हम करते हैं कि इसकी भी पसीराई है, इसका भी सवाब है, इसकी भी हमें तरगीब है कि हम करें। तो यूँ अल्लाह रसूल का हुक्म बजा लाते हुए तो हम सवाब के लिए इबादत समझ कर काबे शरीफ का तवाफ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कदर हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाती है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट मलीड 2 के मदरसतुल मदीना के बच्चे मौजूद हैं, और माशाल्लाह कार्ड भी पर भी बहुत ही प्यारा जो है कलाम है, अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, ये लिखा हुआ है। मुझे दावत इस्लामी से प्यार है,
फैज़ान अमीर मुआविया जारी रहेगा इंशाअल्लाह करीम। मुझे दावत इस्लामी से प्यार है और मुझे दावत इस्लामी से प्यार है और मदनी मकसद माशाअल्लाह ये लिखा हुआ है जो हम थोड़ी देर में दोहराएंगे इंशाअल्लाह। और बहुत ही प्यारा नारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, और ये नारे भी मिलकर लगाते हैं इंशाअल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी, दावा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। प्यारे प्यारे बच्चों, आइए अपने अज़्म का इजहार करते हैं। हम सरकारों मैंने लिखा है, मेरा दावा क्या होना है, नारा है अत्तार का, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। आइए अपने अज़्म का इजहार करते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हो गया इनका जी, माशाअल्लाह। अल्लाह या अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बना, सबको हाफिज कुरान भी बना दे। सब अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बने, बार बार माँ बाप के साथ, खानदान वालों के साथ हज करें, मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना देखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, मकतबतुल मदीना का एक प्रोमो देखते हैं। कुर्बानी एक अजीम फरीज़ा है। इस अजीम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हम क्या क्या अच्छी अच्छी नियतें कर सकते हैं, इन अच्छी नियतों को जानने के लिए मकतबतुल मदीना पेश कर रहा है खूबसूरत प्रिंटिंग के साथ एक नियतों का कार्ड। ईद उल अज़हा के मौके पर इस कार्ड को आप खुद भी हासिल कीजिए और अपने दोस्त और अहबाब को पेश कीजिए। कार्ड को हासिल करने के लिए मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के लिए इन नंबर्स पे रब्ता कीजिए। मकतबतुल मदीना। हराम 1445 हिजरी में नफली रोजे रखने वालों की नियतें। कुल रोजे रखने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 7236 7236। इस्लामी बहनों की तादाद 12067 12067। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की तादाद 19303 19303। 10 जून 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, अल्लाह पाक पर भरोसा करने को क्या कहते हैं? जवाब, तवक्कुल। सवाल नंबर 2, मैयत की वसीयत पर अमल करते हुए उसी के माल से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का क्या किया जाएगा? जवाब, शरई फकीर को सदका किया जाएगा। सवाल नंबर 3, सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल मुबारक किस ईस्वी साल में हुआ? जवाब, 1981 सिने ईस्वी में। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान, अलीशान रिजवी बिन मोहम्मद उस्मान जौहर टाउन लाहौर, मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी झंग, सिद्दीक एजाज हवेली लखा, बिनते नदीम अत्तारिया कराची, मोहम्मद एहसान अत्तारी घोटकी सैद, बिनते साजिद अत्तारिया अलीपुर चट्ठा। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मोहम्मद एहसान अत्तारी घोटकी सिंध। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाजरीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, वालिदैन को किस नज़र से देखने पर मकबूल हज का सवाब मिलता है? सवाल नंबर 2, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ऊँट अपने मुबारक हाथ से नहर फरमाए? सवाल नंबर 3, फ़िरऔन की सरकशी में जब कमी आती थी तो उसे कौन मज़ीद सरकशी पर उभारता था? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया